Hello children, welcome to our new video. Next topic is how do we periodize? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. These periodizations came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? हम अवधियों को कैसे तय करते हैं? 1817 में यानी 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया। इन कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate. The difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक ही वजह है। हम एक दौर की खासियतों या उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी जो सेंट्रल माइंड होती है या मेन थॉट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे से हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में और दूसरी अवधि में जो भी चीज़ हुआ या उनके बीच जो बदलाव आया उसका क्या महत्व है। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilizations than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despot ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitions practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of India's people, for India was not capable of progress without British help. तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कितना मिल का थॉट किस तरीके का था। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधता, अंधविश्वास का ही बोलबाला था, है ना। यानी मिल की राय ये थी कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकते हैं। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक भी सुझाव दे दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर, मतलब जितना हिस्सा है भारत का, उस पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का ही दौर था।
क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? इन एनी केस, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इस सारे दौर को कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चला सकते या नहीं धर्म चल सकते हैं? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का या दौर का कोई महत्व ही नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. This division too has its problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty, and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept these characterizations of modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. अंग्रेजों द्वारा सुझाया गया वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन से अलग हटकर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के रूप में, आधुनिक काल के रूप में बांटा। इस विभाजन को भी देखें तो बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं। इतिहास के इन खंडों को बांटने का यह जो सोच था ये पश्चिम से ही आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी पश्चिम में जो भी साइंस में डेवलपमेंट हुई या फिर आप तर्क में कहेंगे या मुक्ति में कहेंगे, जो भी बातें कह रहे हैं उसमें जो डेवलपमेंट हुई या उनमें जो भी नई नई चीज़ें आई उसको जोड़ करके दिखाया जा रहा था। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपना लें या अपना सकते हैं? जैसा कि आपके किताब में देखेंगे आप, है ना, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास या प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक युग। इस तरीके से हम लोगों का ये टॉपिक भी खत्म हुआ। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में।